Welcome to H2O, the A to Z of chemistry. I'm Dr. Ritu Johar, your educator for this course on chemical bonding, and I hope you are enjoying this course with me. Today we are going to begin with lecture 39 from the course, but make sure you watch the previous ones before viewing this one. In the last lecture, we started with a discussion on back bonding with the help of one example, and the example was the BF3 molecule. But is it only BF3 molecule that shows back bonding? No, not at all. There are going to be so many examples in chemistry where there is going to be back bonding. So today we are going to begin with back bonding part 2, and there's going to be a back bonding part 3 also, because we have so many examples of back bonding, and well, there are going to be so many applications of back bonding as well. Now what do I mean by these applications? Well, in the last lecture, while you were discussing the example of BF3, you also learned that various boron trihalides, the Lewis acid character of them, this is based upon the strength of the back bonding in them. So this is one application of the back bonding concept. There are going to be so many more that you have to learn. For example, let me give you one more. We have NH3 and we have NF3 molecules. Out of these two, what we find is that the NF3 molecule, this is having a smaller bond angle than the NH3 molecule, and this is something that you have learned in the previous lectures. But now if I tell you that the PF3 molecule, this has a larger bond angle than the PH3 molecule rather than being smaller, well, how are we going to explain it? Well, this is going to be one application of back bonding. So you have a lot to learn, and all these things that you're going to learn in this lecture, well, this is going to be very important for your examinations. If you want to excel your JEE Mains, NEET, and especially JEE Advanced, well, this is going to be a one watch lecture. You should not miss it. All right, so let us begin the learning. I hope you are going to enjoy it. शुरू करते हैं सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो कुछ हमने सीखा उसको जल्दी से रिवाइज करके, बट ये एक रिवीजन होगी, डिटेल डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आपने पिछला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिया हो. ऑलराइट, सो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है. दिस इज द फिनोमिनन involving the transfer of a lone pair from a fully filled shell of one atom to the unfilled shell of the adjacent bonded atom. राइट, तो एक एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास अनफिल्ड शेल है, दोनों के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और उसके बाद जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इनफैक्ट ट्रांसफर नहीं शेयरिंग होता है विद द एटम व्हिच हैज द अनफिल्ड शेल, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग. तो ये पॉसिबल तब होगा जब हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें से एक एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट प्लेस्ड हैं, दोनों एक्चुअली एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, ओरिएंटेशन उनमें प्रॉपर होगा, तभी ओवरलैप पॉसिबल है. So this is going to be a kind of pi bonding, चाहे वो partial pi bond हो, चाहे वो full pi bond हो, which will depend upon the relative donating and accepting capability of the donor and the acceptor atoms. तो already पहले एक sigma bond formed होता है दोनों atoms के बीच में, और उसके बाद जो next bond form हो रहा है, that is always a pi bond. So this is a kind of pi bond. Consequently, अगर ये pi bond है तो बॉन्डिंग क्या एक्वायर करेगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. जनरली बैक बॉन्डिंग दिस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी बिकॉज दिस हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में BF3 का मॉलिक्यूल देखा था, हम उसको भी अभी जल्दी से रिवाइज करेंगे. सो सब कंसेप्ट्स जो पिछले लेक्चर में सीखे थे उनकी रिविजन होते होते हम आगे कंसेप्ट्स को और बिल्डअप करने वाले हैं. So this can be also visualized as a type of resonance. So again इसके आप examples अभी देख लोगे तो better understanding हो जाएगी कि ये resonance कैसे है. So generally जो donor atom होते हैं वो क्या होते हैं, second period के element होते हैं जिनके पास एक lone pair of electrons होता है, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है. But sometimes chlorine, bromine, iodine, phosphorus and sulfur ये भी as donor atoms act कर सकते हैं.
सो हम ये सब एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया कि हमारे ये 2 लेक्चर्स होंगे जहाँ पे हम एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। तो पहले लेक्चर में, जो कि आज का ये लेक्चर है, हम उसमें जो केसेस देखेंगे बैक बॉन्डिंग के, वो होंगे जहाँ पे फ्लोरीन एक डोनर एटम होगा और ऑक्सीजन एक डोनर एटम होगा, और बाकी सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So back bonding जो है, this is also called as a pi coordinate bond. Pi bond क्योंकि second bond है, पहले सिग्मा ऑलरेडी बना हुआ है, और coordinate bond इसलिए क्योंकि दोनों atoms एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं towards the bond formation, सिर्फ एक ही atom इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है for the bond formation, ठीक है। So ये एक pi coordinate bond है। और ये जो बैक बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है, वो कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक वो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर साइड एटम ऐसा होगा कि वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल है, जो कि आप पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हो। और दूसरे कंपाउंड्स वो हैं जहां पे सेंट्रल एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टू द साइड सोर्सेज। फॉर एग्जांपल वी हैव ट्राइसिलाइल अमीन NSIH3 थ्राइस, और ये वाला एग्जाम्पल हम वेल नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टडी करेंगे, बट बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आप इसी लेक्चर में देखने वाले हो जहां पे सेंट्रल एटम डोनेट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड। सो कंडीशंस क्या है नेसेसरी फॉर बैक बॉन्डिंग? सबसे पहली कंडीशन, कोई एक एटम ऐसा होना चाहिए है पेयर में जो कि उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा एटम कैसा होना चाहिए जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, और एटलीस्ट वन एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, और दूसरा एटम जो है वो सेकेंड या थर्ड पीरियड का हो सकता है। और एक्सेप्शनली आप कुछ ऐसे भी देखोगे जहां पे इन दोनों के अलावा भी है, बट दैट इज गोइंग टू बी रेयर। जनरली एक एटम सेकेंड पीरियड का होगा और दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का होगा। ये सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। सो इफेक्ट्स क्या है बैक बॉन्डिंग के, जो कि आप एप्लीकेशंस के तरह स्टडी करने वाले हो बैक बॉन्डिंग में। सबसे पहला इफेक्ट कि बैक बॉन्डिंग जो है वो एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और भी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन को इफेक्ट करता है, डायपोल मोमेंट को इफेक्ट करता है। अगेन सारे एग्जांपल्स अभी आप लोग देखने वाले हो। बॉन्ड एंगल जो मॉलिक्यूल का होगा, दिस मे और मे नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, बट वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। ऑलराइट, ये हमेशा याद रखना कि बॉन्ड एंगल बैक बॉन्डिंग की वजह से हमेशा बढ़ने वाला है या वही रहने वाला है, मगर कभी भी कम नहीं होगा। ऑलराइट, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो बॉन्ड की जो मल्टीप्लिसिटी है वो बढ़ गई। सिंगल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड बन गया, और जब भी मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एटम के ऊपर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से बॉन्ड पे रिपल्शंस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती हैं, और जो बॉन्ड का एंगल होता है वो खुल जाता है। अगेन सब कुछ हम एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे तो कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। अब एक एग्जांपल आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस का बिफोर इवन हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले दे रही हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है, वो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो इन दोनों बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक अच्छा खासा डायपोल मोमेंट वैल्यू आनी चाहिए। बट व्हाट वी सी इज कि जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है, दिस इज 0.11 डिवाइड, जो कि बहुत कम है, राइट। और ये क्यों कम है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाती है फ्रॉम द लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड की बैक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी और बात भी हम करेंगे। एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं बैक बॉन्डिंग के और उसके एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास बैक बॉन्डिंग वो वाले मॉलिक्यूल्स में जहां पे फ्लोरीन एक डोनर एटम की तरह एक्ट करता है। और पहले सबसे कॉमन वाला जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग। तो क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको जल्दी से ही रिवाइज ही कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, राइट। तो बोरॉन के अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और फ्लोरीन के अंदर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो बोरॉन के ये 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड्स होंगे।
राइट। तो BF3 के अंदर ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स, उसके बाद क्या हुआ कि बोरॉन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है ये किसमें प्रेजेंट है, ये 2p में प्रेजेंट है। बोरॉन में कहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, अगेन 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इन दोनों की ओरिएंटेशन जो है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ 2p पाई ओवरलैप। एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर आएगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को डोनेशन के साथ, ठीक है। अब होगा क्या कि ये बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसलिए ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वेल वो क्या होगा, वो तीनों में से किसी बॉन्ड में होगा, तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस आल्सो। तो हम इसको यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं जहाँ पे तीनों ही बॉन्ड्स पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग और यहाँ पे आप कह सकते हो कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी अ लुईस एसिड और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स दो दे रहा है तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ लुईस बेस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BF3। कुछ इफेक्ट्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको रिवाइज करते हुए जल्दी से हम और नए इफेक्ट्स आज देखेंगे BF3 मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग के। तो सबसे पहला BF बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट होगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आती दैट शुड हैव बीन 1.5 एंगस्ट्रॉम, बट एक्चुअली में दिस कम्स अप टू 1.30 एंगस्ट्रॉम जो कि सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज्यादा है, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सजेस्ट करता है। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखें, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो 1 आनी चाहिए मगर एक्चुअली में 1.33 आता है। सो हायर बॉन्ड ऑर्डर और लेसर बॉन्ड लेंथ दोनों क्या बताते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज को कंपेयर करें CF बॉन्ड की और BF बॉन्ड की इन CF4 एंड BF3। सो सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू क्या होता है, पिछली बार भी आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड जब एक मोल बॉन्ड्स का बनेगा और ये बराबर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू के, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है एक मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, बनाने में एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो अब अगर हम CF और BF बॉन्ड्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों के केस में फ्लोरीन है और कार्बन और बोरॉन में से किसका साइज ज्यादा होगा, आप सब जानते हो, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हो कि बोरॉन का साइज कार्बन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वी विल बी हैविंग द बॉन्ड द एटम साइज टू बी डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो BF बॉन्ड है दैट शुड बी ऑफ अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ये लंबा होगा देन कंपेयर्ड टू द CF बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और दूसरा एटम फ्लोरीन है। और अगर ये लंबा है तो अगर इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ना आसान होगा देन अगर हमें CF बॉन्ड को तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि इसको तोड़ने में आपको कम एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू इंथैल्पी वैल्यू इसके लिए ज्यादा होगी और बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि वैल्यू तो दोनों सेम है, राइट। सो अगर अब हम एक्चुअली में कंपेयर करें तो CF बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू आती है दैट इज 515 किलो जाउल पर मोल, जबकि BF बॉन्ड की आती है 646 किलो जाउल पर मोल। तो इसका मतलब क्या है कि BF बॉन्ड को तोड़ने में तो ज्यादा एनर्जी लग रही है CF बॉन्ड को तोड़ने से, जबकि उल्टा होना चाहिए। वो क्यों है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो ये सब चीजें क्या प्रूव करती हैं, ये प्रूव करती हैं कि BF3 के अंदर क्या है, बैक बॉन्डिंग है। सो नाउ लेट अस सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ द बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BX3। इसका मतलब बोरॉन ट्राइहैलाइड्स, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के अलावा BPR3, BCl3, BI3
सब में बैक बॉन्डिंग होती है, फर्क क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का, राइट। अब स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर हम कंपेयर करें सारे बोरॉन ट्राई हैलाइड्स में तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट BF3 में है, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए BI3 में सबसे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है of the back bond, this is directly proportional to the size of the atoms participating in back bonding, या हम कह सकते हैं size of the orbitals participating in back bonding। अगर हम BF3 देखते हैं तो BF3 में बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p पार्टिसिपेट करेंगे बैक बॉन्डिंग में, दोनों कंपेरेबल साइज के होंगे, अच्छा ओवरलैप हो जाएगा। BI3 तक जाते जाते जस्ट इमेजिन कि ये बोरॉन है का 2p है और ये आयोडीन का 5p है, तो इनके बीच में क्या ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो बैक बॉन्डिंग है वो कैसे अच्छी होने वाली है, जब एटम्स का साइज कंपेरेबल होगा, या हम कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बीच में ओवरलैप हो रहा है उनका साइज कंपेरेबल होगा, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। So 2p in BF3, 2p 3p in BCl3, 2p 4p in BBr3 and 2p 5p in BI3. So back bonding is going to be the maximum in BF3. So और इसके बेस पे हमारे पास अगेन एक ऑर्डर है जो कि हमें जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो ऑर्डर है कि आपको लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ द BX3 मॉलिक्यूल्स बताना है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आता है। तो अगर हम अब BX3 मॉलिक्यूल्स देखें तो सारे के सारे BF3, BCl3, BBr3, BI3 सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे। अगर उनको बाहर से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हो तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट करना चाहेंगे सो दैट कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट व्हाट डू वी सी कि BF3 में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो इसको तो अपने ही मॉलिक्यूल में फ्लोरीन से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो कि बाहर से उसको मिल रहे हैं, राइट। सो हम क्या देखते हैं कि BF3 का लोएस्ट एसिड कैरेक्टर सबसे कम है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं BI3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, इसलिए इसका लोएस्ट एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आता है। और सिमिलरली आप यहाँ पे एक और ऑर्डर भी याद कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी फॉर बेरिलियम हैलाइड्स, BeF2, BeCl2, BR2 and BBI2 also, alright। तो ये जो ऑर्डर होगा ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि अगेन इसके अंदर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन रिमेम्बर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो जनरली बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स पे आता है। नेक्स्ट आ जाता है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड्स हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि BBr3 है, BCl3 है, वो क्या करते हैं, दे गेट हाइड्रोलाइज्ड थ्रू बोरिक एसिड, और साथ में HCl या HBr फॉर्म होगा इन केस ऑफ BCl3 एंड BBr3। मगर BF3 के केस में हम क्या देखते हैं कि उसका हाइड्रोलिसिस रेडिली नहीं होता, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है अ कॉम्प्लेक्स विद वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो BF3 के इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बोरॉन हो गया, ठीक है, ये फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये इसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड बोरॉन। क्यों ऐसा होता है, बाकियों के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बोरॉन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, उसके टूटने की जगह पे ये दोनों आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं BF3OH2, जबकि बाकी के केसेस में बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो ब्रेक कर जाते हैं बोरिक एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं BF3 वर्सेस BF4 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा,
अगर आप BF4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखोगे तो बोरॉन यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और बोरॉन के जो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, वेल वो यूटिलाइज हो जाने वाले हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो BF4 नेगेटिव बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा क्योंकि इसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जबकि BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है। अब अगर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करोगे, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो BF4 नेगेटिव का जो बॉन्ड होगा BF, दिस विल बी लॉन्गर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ BF इन BF3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो BF बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट वैल्यू होगा वो BF4 नेगेटिव में ज्यादा होगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। मगर अगर हम BF3 में देखेंगे तो इसने बैक बॉन्ड किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन के साथ शेयर किया है, तो इनके बीच में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। So these are all the effects जो कि हम बैक बॉन्डिंग की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं, right? So the dipole moment value of the BF bond is going to be more in BF4 negative than BF3 again because of back bonding in BF3. नेक्स्ट हम मूव करते हैं BF बॉन्ड लेंथ इन Me3 and BF3। तो ये क्या है, हमारे पास एक ट्राइमिथाइल अमीन और BF3 मॉलिक्यूल के बीच में एक कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि BF3 और वाटर के बीच में आपने देखा था। नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ लगा है, इसके पास एक लोन पेयर है और बोरॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा तो बोरोन कितने बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, अगेन अगेन 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो अगेन ये क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि अब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड लेंथ है तो वो वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ रही है दैट इज 1.35 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज मच लॉन्गर देन 1.30 एंगस्ट्रॉम इन BF3। व्हाई, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से BF3 के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मगर जब BF3 एडक्ट फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ तो हमारे पास क्या होगा, बैक बॉन्डिंग रहेगी नहीं, सिंगल बॉन्ड रह जाएंगे, इसलिए वो लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग रिटन एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड फॉर यू पीपल। अब एक क्वेश्चन है जो कि आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं, तो अगर आपने ये कंसेप्ट समझा है तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि ये आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं या इनमें से एक आयन भी है, इन सब में से BF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, BF4 नेगेटिव में, H3N BF3 में, या BF3 में, या H2N BF2 में, या HBF2 में। तो सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए। सो अगर आपने कर लिया है तो वेल लेट अस सी। सबसे पहले BF4 नेगेटिव हमने अभी डिस्कस किया है कि BF4 नेगेटिव के अंदर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, सब के सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया H3N BF3, अगेन नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है बोरॉन को, बोरॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो अगेन कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। BF3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बैक बॉन्डिंग होगी। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो अब ये 3 बैक फ्लोरीन के एटम्स हैं जो कि बैक बॉन्डिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बैक बॉन्ड वो कितना होगा, 33% होगा। ठीक है, तो सारों के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है towards the partial double bond character that is going to be 33%। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नेक्स्ट एग्जांपल जब देखोगे तो ये आपके पास क्या है, H2N BF2। अब इसके अंदर भी बोरॉन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 फ्लोरीन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि क्या ये सारे के सारे 33% ही बैक बॉन्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं पुल करेगा, ये बोरॉन की तरफ ज्यादा आसानी से दे सकता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। इसका मतलब ये होगा जो कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन की है टुवर्ड्स द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो 33% से ज्यादा होगी, और फ्लोरीन्स जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए कम कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी हैविंग इज BF बॉन्ड के जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे 33% से कम होगा। और अगर हम अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, HBF2। इसमें अब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, और दो फ्लोरीन्स के साथ है। तो ये अब दोनों फ्लोरीन्स कितना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देंगे, दोनों 50-50%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बिटवीन अ बोरॉन एंड अ फ्लोरीन। यहाँ पे 50%, यहाँ पे 33% से कम, या यहाँ पे 33%। सो सबसे ज्यादा जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा वहां पे BF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो BF3 के बाद अब हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं जहाँ पे फ्लोरीन एक्ट करेगा एज द डोनर एटम, दैट इज गोइंग टू बी PF3 मॉलिक्यूल। अब अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही देखें तो क्या हम सोच सकते हैं कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं? तो हमें चाहिए क्या है, एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट या सेकेंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का। तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉस्फोरस के पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे तो। राइट, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p 3, तीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स और एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स, जबकि फ्लोरीन के केस में दो p ऑर्बिटल्स हैं जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अगर हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वेल ये वाली जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक फॉस्फोरस की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन का एटम इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा फ्लोरीन का एटम इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। तो तीन सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में। और उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन का एटलीस्ट एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसकी ओरिएंटेशन इन पांचों d ऑर्बिटल्स में से किसी के साथ सिमिलर होगी। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते फॉस्फोरस का ऑर्बिटल ऐसे होगा, क्योंकि वो 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। 3d ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको इस तरीके से शो किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि फॉस्फोरस का एक 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है, और फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है, और उनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और उससे क्या बनेगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। हमेशा जो एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है उसका ऑर्बिटल पहले लिखना है, और जो रिसीव कर रहा है उसका ऑर्बिटल बाद में लिखना है। सो 2p फ्लोरीन का और 3d फॉस्फोरस का 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, अगेन हम क्या देखेंगे कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीसरे फ्लोरीन के साथ, और ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड में तीनों फॉस्फोरस फ्लोरीन के जो बॉन्ड्स है उसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होगा, अगेन जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टन होगी, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा, एंड सो ऑन। जो हम सारी एप्लीकेशंस BF3 में देखते हैं हम वो यहाँ पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर हम इसका एंगल देखेंगे तो वेल जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 96.3 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 156 पिकोमीटर। अब इस जो बॉन्ड एंगल है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम कंपेयर करते हैं PF3 का मॉलिक्यूल PH3 के मॉलिक्यूल से कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमें मालूम है कि PF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से PF बॉन्ड्स में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि PH3 के मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी,
हमारी कंडीशंस क्या थी, हमें एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट चाहिए था, यहाँ पे तो सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट। एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और एक फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, इनके बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। साथ ही में हाइड्रोजन के पास ना तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना एम्प्टी ऑर्बिटल है, फास्फोरस के बाद एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, राइट। सो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि PH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ऑलराइट, अब क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा, जबकि PH3 के मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, अब जो दूसरी कंपैरिजन हमने करना है वो है इनके बॉन्ड एंगल्स का, जो कि जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो बॉन्ड एंगल्स अगर हम कंपेयर करें तो PH3 में हम देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 93.5 डिग्रीज और PF3 में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 96.3 डिग्रीज। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप तब अंडरस्टैंड करोगे जब आप इसको कंपेयर करोगे NH3 और NF3 के साथ, राइट। तो NH3 के अंदर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसे हम पिरामिडल शेप कहते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम NF3 देखेंगे तो NF3 के अंदर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, अगेन एक पिरामिडल शेप है, एक टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है और जो बॉन्ड एंगल्स है ये 109.5 डिग्रीज जो कि CH4 के लिए है उससे कम होने चाहिए, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, वेल कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दिस इज गोइंग टू बी 107 डिग्रीज और फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो दिस बॉन्ड एंगल दिस इज 102 डिग्रीज, ठीक है। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम के कंसेप्ट में। तो अगर हमारे पास सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। अपनी तरफ पुल करेंगे तो ऐसे होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगी और बॉन्ड्स पास में आ सकेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि NH3 के कंपैरिजन में NF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो छोटे हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट ही NF3 और PF3 और PH3 में अप्लाई होना चाहिए, राइट। तो PF3 का जो बॉन्ड एंगल है वो PH3 से कम आना चाहिए, बट हम क्या देख रहे हैं कि वो ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगेन हम उसको बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो फास्फोरस की तरफ अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे बढ़ रही है तो इसका मतलब है रिपल्शंस बढ़ेंगी इन कंपैरिजन टू PH3 और हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो NH3 और NF3 के केस में NF3 का बॉन्ड एंगल छोटा और PF3 के केस में और PH3 को कंपेयर करोगे तो PH3 का बॉन्ड एंगल छोटा होगा, क्यों, क्योंकि PF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं BF3 वर्सेस PF3। BF3 और PF3 दोनों के अंदर ही बैक बॉन्डिंग होगा, हमने अभी देखा, मगर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का, क्योंकि BF3 के अंदर क्या होगा 2p पाई बैक बॉन्डिंग, जबकि PF3 के अंदर 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, और 2p पाई बैक बॉन्डिंग वो ज्यादा अच्छी होगी कंपैरिजन टू 2p पाई 3d पाई, क्योंकि जो साइज है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दैट विल बी सिमिलर, ठीक है। तो ये हमारे पास है BF3 और ये है PF3, तो आप इन दोनों में देख सकते हो कि अब एटॉमिक साइज या ऑर्बिटल साइज का यहाँ पे सिमिलैरिटी, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तो वो ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होता, तो स्ट्रेंथ ऑफ द PF3 बैक बॉन्डिंग विल बी मोर देन दैट ऑफ PF3।
और उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के केस में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। अब एक चीज जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो ये है कि BF3 के केस में बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि PF3 के केस में बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि BF3 के केस में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सेंट्रल एटम पे, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। So BF3, therefore, this has a stronger partial double bond character in comparison to PF3, and consequently this will be behaving as less electron deficient. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड वो BF के अंदर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये इसलिए कम होगा। बॉन्ड एंगल में BF3 में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन एज द डोनर एटम, और सबसे पहला मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी Cl2O। अगेन अब इसको देखते हुए या हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो क्या है, एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और 3d ऑर्बिटल्स हैं जो कि वेकेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एटम है जो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और उधर से हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और उसके पास 2p के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दो क्लोरीन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और उसके बाद इसके पास एक लोन पेयर 2p में है और 3d एम्प्टी है जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होते हुए क्या फॉर्म करेंगे, बैक बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ClO के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड्स और एक क्या बन गया, बैक बॉन्ड। ठीक है। अब अगेन रेजोनेटिंग दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, या ऑक्सीजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या इस क्लोरीन के साथ फॉर्म कर सकता है, और हमारे पास क्या आएगा, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हम देखते हैं कि दोनों क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स पे बराबर का होता है। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है दिस इज 110.8 डिग्रीज। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो कि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर फिर भी उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों के बीच में बैक बॉन्ड बन गया। बैक बॉन्ड बना तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ने p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, p पाई और d पाई, जो दे रहा है वो p है और जो ले रहा है वो 3d है। सो p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड की जो मल्टीप्लिसिटी है वो बढ़ गई। जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पे बढ़ जाएगी। दूसरा वे इसको सोचने का ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन अब दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और उसके पास एक लोन पेयर है जो कि वेकेंट है, और एक लोन पेयर है जो कि अब उसने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर रहा है। राइट, तो इसका मतलब है कि दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है फॉर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 रादर देन बीइंग sp3। तो अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो इट वुड हैव बीन sp3, दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे अब क्या हम कह रहे हैं कि एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर यूज हो रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। राइट, तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होती तो जो नॉर्मल एंगल थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्रीज, जहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल क्या देख रहे हैं, 110.8 डिग्री, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, 110.8। या अगला वे और एक एक्सप्लेनेशन भी इसकी आती है कि एक लोन पेयर यूज हो रहा है बॉन्डिंग में, एक रह गया, तो लोन पेयर रिपल्शंस जो है वो कम होगी। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शंस कम होंगी तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये खुल सकता है। सो दिस मेक्स इट एन एंगल ऑफ 110.8 डिग्री। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, सब सिग्मा बॉन्ड्स हो, तो एक्सपेक्टेड एंगल कितना होता है, 109.5। दो लोन पेयर्स की वजह से एक्सपेक्टेड एंगल कितना हो सकता है, जैसे वाटर के अंदर 104.5, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 110.8, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग।
तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं बॉन्ड एंगल इन OF2, H2O एंड OCl2। तो H2O और OCl2 में आपको मैं अभी एक हिंट भी दे रही थी कि वाटर और OCl2 के केस में क्या डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर हम सिर्फ ऐसे ही विदाउट बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को लिए बिना सोचें तो हम क्या सोचेंगे कि दो तीनों के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उस वो दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट डेविएशन होनी है, मगर ऑक्सीजन में सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी 109.5 डिग्री से, सबका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा। ठीक है, और वो कितना कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो साइड एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इन सब के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, तो अपनी तरफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, जैसे कि हमने NH3 के केस में देखा था, राइट। अगर ये अपनी तरफ पुल करेगा तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किस में आना चाहिए, OF2 में, फिर OCl2 में और फिर H2O में। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो जाएगा, OH2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर OCl2 और OF2। मगर हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि Cl2O में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग से ओपन अप हो जाता है बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पे इंक्रीज कर जाएगी, ये ओपन कर जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाएंगी, वो भी एक रीजन बनता है इस बॉन्ड एंगल के ओपन होने का। तो हमारे पास जो बॉन्ड एक्चुअली ऑर्डर आएगा दैट विल बी OCl2 ग्रेटर देन OF2 ग्रेटर देन OF2। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आते हैं, जो कि बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन आ गया OCl2 का और SCl2 का। OCl2 का बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ग्रेटर देन SCl2, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। SCl2 के अंदर दोनों क्या हो गए, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हो गए, और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं सल्फर और क्लोरीन के पास, दोनों के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ देयर ओन में ही आसानी से डीलोकलाइज हो सकते हैं, सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, और उसकी वजह से बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कम है, और OCl2 का जो बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से वो ज्यादा होगा दैन कंपेयर टू SCl2। एक और एग्जांपल वी हैव the bond length of BO in BOH3, that is boric acid, this will be less than BO in BOH4 negative. So that is easy for you to see कि यहाँ पे बोरॉन तीन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है OH के साथ, और यहाँ पे बोरॉन चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, राइट। तो जब तीन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा तो दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे टू पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, जबकि BOH3 में बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो बैक बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड डाइसिलाइल ईथर और डाइसिलॉक्सेन, जहां पे हमारा ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में बैक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिलिकॉन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, सो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्ड इज देयर। अब इस कंपाउंड के अंदर सिलिकॉन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तीन हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है उसको एक्साइटेड स्टेट में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और ऑक्सीजन को दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं दो सिलिकॉन के एटम्स के साथ, सो ही वो ये यूज करेगा। उसके बाद उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, उनमें से एक वो यूटिलाइज करेगा फॉर बैक बॉन्डिंग, राइट, और उससे हमारे पास ये एक कंपाउंड बनेगा डाइसिलाइल ईथर। अब डाइसिलाइल ईथर में क्योंकि बैक बॉन्डिंग है तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कीजिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है अगेन sp3 से sp2 की तरफ होगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है और डाइसिलाइल ईथर है। डाइमिथाइल ईथर BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, डाइसिलाइल ईथर BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डाइसिलाइल ईथर आपने अभी देखा कि उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे होना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं रहा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू द वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। जबकि डाइमिथाइल ईथर में क्या होगा कि कार्बन एटम है, कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसमें डाइमिथाइल ईथर में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, डाइसिलाइल ईथर में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए ये BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, ह्यूज इंक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल इन डाइसिलाइल ईथर वर्सेस डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर में अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं, दिस इज 110.8 डिग्रीज, जबकि डाइसिलाइल ईथर में जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 144 डिग्रीज। अगर हम सिंपली अंडरस्टैंड करें तो दोनों के केस में हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उसके आसपास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों ही में हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। मगर हम 110.8 डिग्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे CH3 के इसमें, वेल वो हम एक्सप्लेन करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। बड़ा मिथाइल ग्रुप आ जाता है ऑक्सीजन के आसपास, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और डाइसिलाइल ईथर में क्या होगा, वेल डाइसिलाइल ईथर के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, और दूसरा है कि स्टीरिक हिंड्रेंस भी है इसकी SiH3 के दो ग्रुप्स की। तो दोनों की वजह से हम ज्यादा बड़ा एंगल देखते हैं डाइसिलाइल ईथर में इन कंपैरिजन टू डाइमिथाइल ईथर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, कि हमारे पास डाइसिलाइल ईथर है और हमारे पास Cl2O है। अब इन दोनों के केस में Cl2O का यहाँ पे एंगल नहीं लिखा, दैट इज 110.8 डिग्रीज जो कि आपने अभी स्टडी किया, और डाइसिलाइल ईथर में जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 144 डिग्रीज जो कि ज्यादा बड़ा है। क्यों है, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है 3d ऑर्बिटल्स, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा अगेन 3d एम्प्टी ऑर्बिटल्स। दोनों के केस में बैक बॉन्डिंग होती है और वो भी 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, सेम तरह की बैक बॉन्डिंग हो रही है, मगर फिर भी जो बॉन्ड एंगल्स है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। वो ह्यूज डिफरेंस क्यों है, वेल वो इसलिए है क्योंकि दोनों के केस में चाहे 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो, मगर क्लोरीन के हर एटम के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्सीजन से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिटार्ड करता है, जबकि सिलिकॉन पे ऐसा कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल होगा। इसलिए यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर देन द बैक बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा और बॉन्ड का जो एंगल है वो ज्यादा खुल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं जहां पे ऑक्सीजन एक्ट्स एज द सेंट्रल एटम एंड मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो आयन है, दैट इज B3O6 नेगेटिव, दैट इज बोरॉक्सी। और सिमिलर ही यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज बोराजीन B3N3H6। एक्चुअली ये भी आप ऐसे लिख सकते हो H3B3O6, दैट इज गोइंग टू बी मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड में ये जो B3O6 है वो एक रिंग फॉर्म करता है, इट इज गोइंग टू बी प्लेनर एंड एरोमेटिक। Similarly, borazine is also going to be forming a ring which is going to be planar and aromatic, और उसकी वजह क्या होगी, वो रिंग प्लेनर और एरोमेटिक क्यों बनती है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होती है बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द डोनर एंड बोरॉन एक्ट्स एज द acceptor of a lone pair of electrons, that is by back bonding। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो
कि बोरॉन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म किए, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था। ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल में अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की स्पेस थी, दोनों के बीच में बैक बॉन्ड फॉर्म हुआ और उसकी वजह से अब ये 3 ऑक्सीजन और 3 बोरॉन एक रिंग फॉर्म कर देते हैं। इट बिकम्स प्लेनर एंड बिकम्स एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिमिलरली दूसरा पॉसिबिलिटी, ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अगर इन दोनों का हाइब्रिड हम ड्रॉ करेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो जाएगा बोरॉन और ऑक्सीजन के एटम्स में, मेकिंग इट लुक वेरी सिमिलर टू बेंजीन। और सिमिलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं B3N3H6 के अंदर। ये भी एक प्लेनर और एरोमेटिक रिंग कैरेक्टर आता है। इनफैक्ट इस कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन विल बी एक्टिंग एज द डोनर एटम। सो एटलीस्ट यू नाउ अंडरस्टैंड कि इस कंपाउंड के अंदर बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। दिस एक्ट्स एज अ फुल कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट डबल बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है दैट इज R3SiOH, दिस इज मोर एसिडिक देन R3COH। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर को देखने का एक तरीका ये होता है कि हम इसका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो वो एसिड की तरह एक्ट करता है, और जब वो H पॉजिटिव निकलेगा तो बाद में पीछे क्या बन जाएगा, R3CO नेगेटिव और R3SiO नेगेटिव, जो कि H पॉजिटिव यहाँ इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो अगर R3SiOH का कॉन्जुगेट बेस एक स्टेबल बेस है तो R3SiOH is going to be more acidic than R3COH। तो अगर हम वो अब H पॉजिटिव को निकाल देते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी दैट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मिंग अ बैक बॉन्ड विद सिलिकॉन। तो बैक बॉन्डिंग हुई ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सिलिकॉन के बीच में, और वो क्या करेगा, इसको कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जबकि R3CO नेगेटिव में जो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पे हो सकती है बिकॉज ऑफ अ 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग। So this is going to be more stable than R3COH। और सिमिलर रीजंस के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है SiOH का, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ COH, या जो बॉन्ड लेंथ होगी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी लेस दैन द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अगेन बैक बॉन्डिंग विल बी द आंसर फॉर दैट। R3NO, this has a higher dipole moment as compared to R3PO। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो, और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बैक बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब हमें डायपोल चेक करना होगा तो वह डायपोल चेक करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है that is going to be less than the electronegativity difference between oxygen and phosphorus। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है अगर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए। PO बॉन्ड, दिस शुड बी मोर पोलर देन द NO बॉन्ड, राइट। अगर ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो इसका मतलब है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा आनी चाहिए, बट व्हाट वी फाइंड इज कि जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है दैट इज मोर फॉर R3NO इन कंपैरिजन टू R3PO। ठीक है, यहाँ पे 5 डिवाइड, यहाँ पे 4.37 डिवाइड। वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में
बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ऑक्सीजन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इसके पास 3d ऑर्बिटल्स, इसके पास 2p ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास वो ऑर्बिटल्स जो है डी ऑर्बिटल्स वेकेंट नहीं, अवेलेबल ही नहीं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए आज के दो लास्ट मॉलिक्यूल्स के डिस्कशन पे, जिसके साथ हम आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगेन हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाइट्रोजन, कार्बन, हेलोजन्स एज डोनर एटम्स को देखेंगे। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो बैक बॉन्डिंग शो करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने कंसेप्ट सीखे उन सब को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। दोनों ने दो दो सेंटर में रखे, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और लुईस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो कैसे इस मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीच में रख के कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा और कार्बन का भी ऑक्टेट इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सिंपल एक अंडरस्टैंड किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जब एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रखेगा और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है और फिर हमने सीखा कि जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और इन 2 पाई बॉन्ड में से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने आज और पिछले लेक्चर में भी सीखा था। वेल, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? दिस इज अ बैक बॉन्ड। ठीक है, सो आई होप नाउ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में समझ में आया कि हम धीरे धीरे लर्न करते हुए कैसे हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड अप कर सकते हैं। कैसे उसकी फॉर्मेशन हो रही है आपको अच्छे से समझ में आया, राइट? सो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी कार्बन मोनोऑक्साइड में from the lone pair of oxygen to carbon, and this is a coordinate pi bond and this is an example of back bonding. और अब हम लास्ट मॉलिक्यूल देखेंगे आज का, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? F3C2AlOAlCF3 ट्वाइस। और इसमें जो AlOAl एंगल है दैट इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री। अब इस सबसे मीनिंग क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल क्यों है? ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि अब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। वो दो एल्यूमिनियम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये एल्यूमिनियम आगे CF3 ग्रुप्स के साथ ये कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा एटम है? ये एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास empty 3d ऑर्बिटल्स है, दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये हमें सबको मालूम है। ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल है। वेल, अभी तक जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे उसमें आपने देखा कि जो सेंट्रल एटम है या साइड एटम है वो सिर्फ जिसके पास जितने मर्जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो सिर्फ एक लोन पेयर को यूज करता है बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, मगर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा बैक बॉन्डिंग के लिए। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड के एल्यूमिनियम के साथ और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड के एल्यूमिनियम के साथ। ऐसा क्यों होता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ जो आगे ग्रुप लगा है दैट इज CF3। CF3 में 3 फ्लोरीन के एटम्स कार्बन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसने क्या करना है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करना है। ठीक है,
तो अगर हम इसको एक एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दें तो ये इस तरीके से 3 फ्लोरीन के एटम्स बनेंगे जो कि एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे कार्बन से। ठीक है, इसको कहते हैं एक इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रही है, जिसे आप ज्यादा डिटेल में स्टडी करोगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बट एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा कार्बन से। अब कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से खींच रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू करेगा, राइट। और ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को कहेगा प्लीज अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, तुम्हारे पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हैं। तो ऑक्सीजन कहेगा ठीक है मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भैया, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इधर भी ये शेयर करेगा और इधर भी ये शेयर करेगा, तो दोनों तरफ ये शेयर करेगा, राइट। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इधर से फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन्स खींची जा रहे थे, तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसलिए वो ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। सिमिलरली दूसरे वाला भी पुल कर लेगा, तो दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देते हुए दो बैक बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, जो कि अभी तक हमने किसी मॉलिक्यूल में नहीं स्टडी किया। और उसका मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन के अब ये दोनों लोन पेयर्स किस में यूज हो रहे हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म करने में, राइट। एक इधर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक इधर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2 फॉर्म कर रहा है, लोन पेयर अब यूटिलाइज हो रहे हैं बैक बॉन्डिंग में। तो इसका मतलब ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा और 180 डिग्री का एंगल होता है sp हाइब्रिडाइज्ड एटम के लिए, राइट। 180 का एंगल अब नहीं होगा बट ऑलमोस्ट 180 डिग्री का एंगल हम देखेंगे। अब ये ALOAL बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ पार्शियल बैक बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल है बट फिर भी काफी ज्यादा इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली हम देखते हैं कि PH3SiO SiPH3 जब सिलिकॉन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो भी सिमिलर रीजंस की वजह से जो SiO Si एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्री। अब जो फिनाइल ग्रुप्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसको हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हम हर एक मॉलिक्यूल में ट्राई कर रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दे बैक बॉन्डिंग को, सो दैट जब आप रिवाइज करो अपने कंसेप्ट्स आपके पास ये सारे के सारे कंप्लीट डेटा हो आपको याद कराने के लिए कि एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया और आपको आता है, राइट। सो यहाँ पे हम आज का ये लेक्चर फिनिश करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, मजे से पढ़ाई की, सब कुछ समझ में आ गया और हमने इतने सारे मजे मजे में एग्जाम्पल्स भी कर डाले और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी सीख डाली। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारी बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस को सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट। आप अगला लेक्चर मिस नहीं करना चाहेंगे और उसका नोटिफिकेशन तो तभी आने वाला है जब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही में अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही में अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि और भी बच्चे इस लेक्चर को देख सके और अपने एग्जामिनेशन अच्छे से कर सके। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।